Hello dear students, today we will see the last topic of this unit 2, that is belt friction. Okay, so what is the belt friction? It is the friction between this belt or rope which is passing over this pulley and the surface of pulley or shaft, then that is called as the belt friction. When the belt is passed over the fixed shaft or pulley, and if there is no friction, okay, if there is no friction between the drum and belt, see, if there is no friction, then the tension between these two ropes, or rope is only one there, okay, only one rope is there, okay, so the tension on both side will be same. Suppose this is T1 and this is suppose T2, tension in this side, tension in this side. If there is no friction, then T1 is equal to T2. If there is friction, then T1 is not equal to T2. Okay, so when T1 and T2 is not equal means what, one एक टेंशन जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, दूसरा टेंशन जो रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है. सो ज़्यादा टेंशन कौन से साइड में रहेगा? जिस साइड में इम्पेंडिंग मोशन रहेगी. सपोज दिस साइड, in this side there is impending motion, means what, this rope will get down and this will get up, okay, then this T2 is called as the tension in tight side and this is tension in slack side, ठीक है. When there is friction, okay, so now what is the purpose of this belt friction? It is used to raise the load, just like we lift the bucket from the well, okay. So what is the purpose of that phenomenon? To raise the water with the help of bucket and rope from the well, okay. Now there is one pulley is found fixed on this on the well, and with the help of that pulley we pass the rope, or we can say belt, over that pulley, and we lift the rope with we lift the bucket with the help of rope. So that is the use of belt friction. If there is friction, now there will be always friction between the this pulley and this rope, okay. If there is friction, then these two tension will not be same. So tension in this side will be tight side, and the tension is in this side is slack side, okay. So T2 is greater than T1, ठीक है. जो टाइट साइड का टेंशन रहेगा वो बड़ा रहेगा स्लैक साइड से, क्योंकि इस साइड में इम्पेंडिंग मोशन है, ठीक है, इस साइड में इम्पेंडिंग मोशन है. जो नीचे आएगा वो बड़ा रहेगा, है ना, वहाँ पे ज़्यादा लोड रहेगा इसलिए वो नीचे आ रहा है, ठीक है. सो अभी देखो, टेंशन इज मैक्सिमम on the side of impending motion, right? It has no overcome friction to start the motion, ठीक है. तो these two tension are related by the expression that is T2 by T1 is equal to e raised to mu beta, ठीक है. ये एक रिलेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है. सो T2 आपको पता है टेंशन इन टाइट साइड, एंड T1 इज टेंशन इन स्लैक साइड, ठीक है. What is mu? Mu is coefficient of friction. Mu is coefficient of friction. What is beta? Now beta is very simple. See, यहाँ से ये रोप का कांटेक्ट छूट गया है और यहाँ से ये रोप का, मतलब ये साइड का कांटेक्ट छूट गया है, ठीक है. सो एंगल बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स, एंगल बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स और लैप एंगल इज कॉल्ड एज द बीटा. सो व्हाट इज बीटा? इट इज lap angle or angle between contacts, angle between the contacts, right? So what is the angle here? It is 180, ठीक है. मैंने आपको बहुत बार बताया, जब भी एंगल साइन कॉस टैन के साथ रहेगा तो वो डिग्री में रहेगा. जब वो अकेला रहेगा, ठीक है, उसके साथ साइन कॉस टैन नहीं रहेगा, तो आपको वो लेना है
रेडियन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई रेडियन आएगा, है ना, ये पाई रेडियन है, ठीक है। अभी इसके ऊपर के हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। Okay, here is the numerical. Determine the minimum coefficient of friction between the rope and shaft will prevent the unbalanced cylinder from moving. Means there is friction, right? अभी देखो इसमें से एक T1 है और एक T2 है, ठीक है। तो कौन सा T1 रहेगा, कौन सा T2 रहेगा? T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1, मतलब ये क्या रहेगा, T2 एंड दिस इज T1. सो आवर फॉर्मूला इज T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू ई रेज टू म्यू बीटा। हमको क्या पूछा है, म्यू पूछा है, ठीक है। बीटा क्या रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये कांटेक्ट और ये कितना रह गया, कितना होगा वो, पाई रेडियन, ठीक है। T2 इज 100, T1 इज 50, E इज इक्वल टू म्यू निकालना है, बीटा इज पाई, ठीक है। तो ये आता है 2 आएगा ये, ठीक है। पाई इंटू म्यू इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 100 अपॉन 50, ठीक है। 100 अपॉन 50 कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ln 2 डिवाइड बाय पाई, सो आंसर इज 0, सॉरी, म्यू इज इक्वल टू ln, ये 2 रहेगा और डिवाइडेड बाय पाई, सो म्यू क्या आएगा 0.22, सॉरी 0.22. It is coefficient, so it has no unit. Okay, we'll take another problem. Okay, here is the another problem. Determine the minimum coefficient of friction between the rope and shaft will prevent the unbalanced cylinder from moving. Take P is equal to mg by 6. Mass of cylinder is m and total number of turn. Okay, so these are the turns. Total number of turns are given 1.25 turn. C हाफ टर्न यानी क्या, पाई, वन टर्न यानी 2 पाई. Okay, if one turn is equal to 2 pi, then 1.25 turn is equal to कितना रेडियन आएगा. तो क्या होगा, ये सपोज आएगा आपका 2 पाई इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1.25 रेडियन. ठीक है, ये आपका बीटा आएगा. ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू बीटा. अब कौन सी साइड टाइट साइड रहेगी और कौन सी स्लैक रहेगी. ठीक है, ये मास m है सिलेंडर का, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेट हो जाएगा. ये भी फोर्स है और ये भी अब फोर्स हो गया. ठीक है, ये अभी mg बढ़ा या mg/6 बढ़ा. सो mg बढ़ा. ठीक है, तो हम यहाँ पे T2 लेंगे mg, T1 इज हाँ, जो ग्रेटर रहता है T2 इज ग्रेटर दैन T1 वो न्यूमरेटर में रहेगा. T1 विल बी इन डिनोमिनेटर, राइट. सो दूसरा साइड है mg/6 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू. हमको फाइंड करना है बीटा इज, ये रहेगा हमारा बीटा. ठीक है, ये समझ में आया आपको. ये बीटा रहेगा, ये कितना आता है बीटा, 1.25 इंटू 2. सो वो आएगा 2.5 रेडियन. 2.5 रेडियन. ठीक है, अभी हमको म्यू निकालना है. ठीक है, तो ये क्या आएगा, देखो mg विल गेट कैंसल. ln ऑफ 6, राइट. ये mg कैंसिल रहेगा. ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा. इज इक्वल टू म्यू इंटू 2.5. सो फ्रॉम दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू. देखो ln
सॉरी ln 6 डिवाइड बाय 2.5. आंसर इज, सॉरी यहाँ पे 2.5 पाई रहेगा, हाँ सॉरी 2.5 पाई. सॉरी फिर इसको पाई से, सो आंसर इज 0.22. ये 2.5 पाई है. ठीक है, यस समझ में आया प्रॉब्लम. अभी और एक लेंगे. Here is the another problem. The problem was asked in March 2020 for 7 marks. ठीक है, 7 marks के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है. A cable is passing over the disc of belt friction apparatus. If the coefficient of static friction is mu is given. Mu is given. Static friction is 0.25 and weight of block is 500 न्यूटन. ठीक है, ये जो दिया है ये 500 न्यूटन दिया है. डिटरमाइन द रेंज ऑफ फोर्स पी टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम. रेंज ऑफ पी पूछा है यहाँ पे. ठीक है, रेंज ऑफ फोर्स पी. सो व्हाट इज मीन बाय रेंज? इसके या इसके बीच में, ये और ये वैल्यू के बीच में पी रहेगा. मतलब कि आपको पी के दो वैल्यू फाइंड करेंगे, एक पी मैक्सिमम और एक पी मिनिमम. ठीक है, बहुत इजी है. सो पहली केस हम कंसीडर करेंगे केस 1 व्हेन पी इज मैक्सिमम. ठीक है, जब पी मैक्सिमम रहेगा तो T2 क्या रहेगा? T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू बीटा. T2 विल बी P मैक्स रहेगा. सो T1 क्या रहेगा? 500 रहेगा इज इक्वल टू ई. म्यू दिया हुआ है 0.25. व्हाट विल बी बीटा? बीटा इज पाई. सो व्हाट इज P मैक्स? P मैक्स क्या रहेगा? ई रेस टू 0.25 पाई इंटू 500. So P max is 1096.64 Newton. Okay. Now case 2. When P is minimum. Right? When the P is minimum. Yes. नाउ अब जब P मिनिमम रहेगा तो वो कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में. और न्यूमरेटर में क्या रहेगा? 5000 अपॉन P मिनिमम इज इक्वल टू ई रेज टू 0.25 पाई. ये साइड जो है वो सेम रहेगी. ठीक है, सो P मिनिमम विल बी 500 अपॉन P मिनिमम को यहाँ पे लेके जाना है और इसको इधर लेके आना है, ई रेज टू 0.25 पाई. सो P मिनिमम इज 500 divided by e raised to 0.25 pi. It is 227.96 Newton. So what is the range? Range of force P is क्या रहेगा? 227.96 न्यूटन ग्रेटर देन P ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन 1096.64 न्यूटन. ठीक है, सो ये प्रॉब्लम है. ऐसे प्रॉब्लम पूछते हैं एग्जाम में. ये 7 मार्क्स के लिए पूछा था इनसेम एग्जाम में. ठीक है, एक प्रॉब्लम बेल्ट फ्रिक्शन के ऊपर रहता है, तो आप बेल्ट फ्रिक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, बहुत ईजी है. अभी और एक प्रॉब्लम लेंगे. Here is the another problem. This problem was asked in October 19 for 7 marks.
7 मार्क्स के लिए पूछा है, ठीक है। 2 cylinders are connected by the rope that passes over 2 fixed circular rod. Knowing that the coefficient of static friction between the rope and rod is mu is given 0.4. Determine the maximum value of m for the equilibrium. हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो दोनों भी सिलेंडर का मास दिया हुआ है, उसका हमको वेट फाइंड करना है। तो इसका वेट क्या आएगा 50 इंटू 9.81 और इसका क्या आएगा mg। तो ये कितना आता है 50 इंटू 9.81 490.5 और ये रहेगा mg, ठीक है। हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू हमको m की पूछिए तो m क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। m क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। सो m मैक्स। मिनिमम क्या रहेगा, ये 50 kg है ना, ये 490.5 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू कितना है 0.4। बीटा, अभी देखो बीटा यहाँ पे कितना रहेगा, बीटा π/2 है ना, यहाँ पे π/2 और यहाँ पे भी π/2 रहेगा। डायग्राम आपको ऐसी दिख रही है, एक्चुअली ये ऐसा है, ठीक है। ये 50 kg है और यहाँ पे m है, तो ये π/2 हो गया और ये π/2 हो गया। सो π/2 और π/2 कितना, हाफ और हाफ पाई, तो ये रहेगा पाई। सो m मैक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 0.4 पाई इंटू 490.5। सो ये आता है ई रेस टू 0.4 पाई इंटू 490.5। सो आंसर इज सॉरी, ये हमको लेना है mg, ठीक है, ये mg रहेगा। आंसर इज 1723.41। ये mg की वैल्यू हो गई, हमको m की वैल्यू पूछिए, m मैक्स इज 1723.41 डिवाइड बाय 9.81 m मैक्स इज इक्वल टू 175.67 क्या kg, ठीक है। यहाँ पे 50 kg दिया हुआ था, ये मास दिया हुआ था, दोनों का हमने वेट लिया है। तो यहाँ पे भी हम इसका वेट लिया तो ये भी वेट लेंगे mg, ठीक है। m इंटू जी है वो, ठीक है, m इंटू जी। सो हमने जो फॉर्मूला 82/T1 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू बीटा, उसमें वैल्यू पुट की है। ये मैक्सिमम पूछा तो ये बड़ा रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ये डिनोमिनेटर में रहेगा। वैल्यू पुट करने के बाद हमने mg की वैल्यू फाइंड की, ये न्यूटन में आई, ठीक है। फिर सिर्फ हमको मास की वैल्यू पूछी तो इसको हम डिवाइड करेंगे 9.81 से, हमको kg में आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। ये 7 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। बेल्ट फ्रिक्शन बस आपको ध्यान में रखना है कि बीटा कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है बीटा कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। बीटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपको वो फाइंड करते आना चाहिए। और एक न्यूमेरिकल लेंगे। हियर इज द अनदर प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन December 22 for 6 marks. For 6 marks, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, देखिए प्रॉब्लम। ए ब्लॉक ऑफ 10 kg हैंगिंग थ्रू ए inextensible cable kept in rest by applying force of magnitude F is equal to 1.5 kg on another side of cable which is passing through a rough pulley. Determine the lap angle between the cable and
पुली रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक इन रेस्ट एंड नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, लैप एंगल पूछा है बीटा और नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पूछे हैं। ठीक है, तो पहले हम लैप एंगल फाइंड करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करेंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, उसका स्टेटमेंट देखो। एग्जाम में क्या होता है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम का बहुत बड़ा रहा और एक ऐसी डायग्राम देख ली है कि जो कभी देखी ही नहीं, तो स्टूडेंट्स डर जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करना है, केयरफुली रीड करना है। ठीक है, क्या दिया है, क्या पूछा है, वो बहुत अच्छे से आपको समझना है। डायग्राम में क्या दिया हुआ है वो सब देखना है और उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू बीटा। ठीक है, म्यू इज गिवन 0.3। ठीक है, अभी T2 और T1 ये तो टेंशन है, न्यूटन में रहता है, ये दोनों केजी में दिए हुए हैं। अगर आप न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि केजी में वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब कैसे, देखो ये बड़ा है कि न्यूटन में लेंगे तो 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये है 1.5, 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ई म्यू दिया हुआ है 0.3, बीटा हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब बीटा कैसे फाइंड करेंगे, ये ln 10/1.5 आएगा इज इक्वल टू 0.3 बीटा आएगा, इसमें से हम बीटा फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम बीटा फाइंड करेंगे। देखो ln 10 डिवाइड बाय 1.5 डिवाइड बाय 0.3, सो बीटा एंगल आता है 6.32 डिग्री। अब ये जो आया है हाँ सॉरी, ये रेडियन में रहेगा। ठीक है, हाँ ये रेडियन में रहेगा। अब नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू, देखो कैसे, एक टर्न या 2 पाई यानी क्या रहता है 1 टर्न। ठीक है, फिर 6.32 यानी कितने टर्न रहेंगे, सो सपोज ये n टर्न रहेंगे, सो n इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, क्या आएगा ये 6.32 डिवाइड बाय 2 पाई डिवाइड बाय 2 पाई, आंसर इज 1.006 टर्न। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आया, ये आप ध्यान में रखिए, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। ठीक है, लैप एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पाई रहता है। ठीक है, ये 6.32 जो है पाई इसमें ही है। ठीक है, पाई से मल्टीप्लाई करके ही वो आंसर आया, बीटा यानी जो टोटल लैप एंगल रहता है वो आया है यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स हमने फाइंड किए हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम रिसेंट जो इनसेम एग्ज़ाम हुई थी वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकेंड यूनिट में जो क्वेश्चन पूछे थे वो सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।